Hello students, I'm your Prajita ma'am from Concepts Learning Classes, and in this class I will just explain exercise 3.2 of NCERT. And in the last video I have explained some graph of sin x and cos x. I think you must remember how I have explained the graphs, right? So the graphs were like that. I have explained and discussed about the domain and range of the function. So sin x was this, and I said that sin n pi is equal to 0, right? And cos 0 कब होता है? Cos odd multiple of pi by 2 पे, यानी कि 2n plus 1 pi by 2 पे ये 0 हो गया था, राइट? एंड tan x का ग्राफ मैंने बनाया था और मैंने कहा था कि tan x will not be defined whenever the cos x will be 0, because tan x is equal to sin x upon cos x. So these things I have discussed in the class, so you can just go through the previous videos and you can see all the things, right? So I have discussed the graphs, and I think वहाँ पे recording close हो गया था. Like मैंने शायद कोसेक एक्स तक का ग्राफ बनाया था. अगर आप सेक एक्स तक का भी बनाना चाहो तो सेक एक्स इज जस्ट द रेसिप्रोकल ऑफ द कॉस एक्स, राइट? तो कॉस एक्स जहाँ पे डिफाइन नहीं होगा वहाँ पे cos x जहाँ 0 हो जाएगा, cos x 0 हो जाएगा, लाइक cos 90 पे, cos 3 pi by 2 पे, cos 5 pi by 2 पे. whenever the cos x is 0, sec x will not be defined. So you can study the graph, and I will explain the graph again in the when I will make the video of inverse trigonometric function. Then definitely I will explain again the domain, range and graphs in a complete form, right? So now in this video the main topic of discussion is just I will explain some questions regarding of exercise 3.2, and we will solve the questions, right? So first we'll go for the examples. Cos x is minus 3 by 5, x lies in the third quadrant. तो आई टोल्ड यू ASTC, और ये ASTC कहाँ से आता है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये ASTC ही क्यों होता है ना, कुछ और क्यों नहीं होता है ना. तो ये वाली चीज़ें भी दिमाग में आती हैं कि ऐसा ही क्यों होता है कि ASTC यहाँ पे ये वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव. तो हमें पता होना चाहिए कि 0 से 1 पे ये वैल्यू क्या हो रही है. अगर हम साइन एक्स का ग्राफ देखें, सब कुछ ग्राफ से डिफाइन हो जाता है. तो ये 90 डिग्री है, दिस इज पाई बाई 2 एंड दिस इज पाई. तो 0 से पाई बाई 2 तक द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, एंड आफ्टर पाई बाई 2 से पाई बाई 2 इट इज डिक्रीजिंग. तो 0 से पाई बाई 2 इट इज इंक्रीजिंग एंड देन इट इज डिक्रीजिंग. तो यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में इट इज डिक्रीजिंग, बट दिस इज पॉजिटिव. एक्स एक्सिस के अबव जो भी वैल्यू होती है दे ऑल आर पॉजिटिव, और एक्स एक्सिस के बिलो जो वैल्यूज होती है वो क्या होती है? नेगेटिव. तो ये वाला वैल्यू थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाएगा. सिमिलरली अगर हम cos x को देखें तो ASTC यानी कि जो हमारी वैल्यूज होंगी वो पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होती है वो भी पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने यूनिट सर्कल से जब एक्सप्लेन किया था. तो यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, जो हमारे पास एक ट्रिक है याद रखने की ASTC, बट ये सारी वैल्यूज ग्राफ से क्लियर हो जाती है कि जो cos की वैल्यूज होती है, cos को अगर हम देखें तो cos का ग्राफ ऐसा बनाया था. आप देख लेना प्रीवियस वीडियोस में जाकर के. दिस इज द ग्राफ. तो दिस इज 90 डिग्री बिकॉज आई नो दैट cos 90 is 0, and this is 3 pi by 2 and this is your pi, right? तो first it will be positive. second quadrant में it is मतलब pi by 2 से pi, मतलब this is the second quadrant. second quadrant में negative, third quadrant में negative, and in the fourth quadrant it is positive. So in the first quadrant it is positive. So everything is explained by graph why this ASTC is there. So to calculate the find the questions, we know what is ASTC. So in question is this कि x lies in the third quadrant, and this is the third quadrant. This is first, second, third, and fourth. So in the third quadrant only tan is positive, tan and cot are positive, and rest of the trigonometric functions are नेगेटिव. तो cos x अगर मुझे 3/5 दिया हुआ है और मुझसे बाकी सारे रेशियोज पूछे जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पूछे जा रहे हैं, जैसे क्लास 10th में आप लोग को एक रेशियो दिया होता था, आप पाइथागोरस से बाकी सारे रेशियोज निकाल लेते थे. वहाँ पाइथागोरस इसलिए भी यूज कर लेते थे बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली द फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं. तो अगर 3/5 अगर कुछ होता था तो हम पाइथागोरस से उसको 4/5 और 3/4 सब निकाल सकते थे. बट अगर हम क्लास 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये cos -3/5 है और x थर्ड क्वाड्रेंट में है. तो हमें पता है कि cos x अगर मुझे पता है तो cos का रेसिप्रोकल sec x पता चल गया. sec क्या हो जाएगा बोलो? sec x विल बी -5/3. सारे रेशियोज आपको निकालने. तो अब sec पता चल गया तो sec इज इक्वल टू 1 + tan होता है, मतलब sec स्क्वायर
x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो यहाँ से आई कैन फाइंड आउट tan स्क्वायर x। tan स्क्वायर x हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 1। तो sec स्क्वायर x, इसका स्क्वायर करोगे तो इट विल बी 25/9। इसका स्क्वायर क्या होगा 25/9 माइनस 1। सो 9 एंड 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 इज 16। तो tan स्क्वायर x इज 16/9। तो tan x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4/3। अगर इसका स्क्वायर रूट ले लो तो इट इज 4/3। तो हमें प्लस लेना है या माइनस लेना है, हाउ वुड वी नो? बिकॉज इट इज अ थर्ड क्वाड्रेंट, तो tan विल बी पॉजिटिव। तो आई विल टेक tan x as plus 4/3. We will ignore the minus sign. So we will take only the positive sign because they are talking about the थर्ड क्वाड्रेंट, राइट? दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप किस क्वाड्रेंट से डील कर रहे हो। अगर थर्ड क्वाड्रेंट है तो tan एंड cot पॉजिटिव होंगे, तो cot आप इसका रेसिप्रोकल ले लो, इट विल बी 3/4, तो cot x होगा। अगर तुम्हें sin x चाहिए तो तुम्हें पता है कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है, एंड यू नो cos x, तो sin स्क्वायर x हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x, और इसका स्क्वायर हो जाएगा 9/25। तो 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 अपॉन 25, 25 माइनस 10 इज 15, और ये हो जाएगा 16। तो 16/25। तो sin x की वैल्यू आ रही है, sin x की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस 4/5, प्लस माइनस 4/5। तो देखो हम पाइथागोरस से नहीं निकालेंगे, निकालोगे तब भी सेम वैल्यूज ही आएंगी, बस प्लस माइनस अगर तुम फंक्शंस के हिसाब से निकाल के रख दो। लेकिन बेटर है कि हम आइडेंटिटीज यूज करके निकाल लें, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर होता है, वी विल गेट प्लस एंड माइनस बोथ वैल्यू, और हमें जो इग्नोर करना है वो इग्नोर कर देंगे, और जो फाइंड आउट करना है क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं वैल्यू। तो ये आ गया मेरे पास साइन एक्स की वैल्यू। साइन एक्स की वैल्यू मैंने कैसे निकाली, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स से 1 माइनस 16/25, इसका स्क्वायर रूट लोगे तो आएगा प्लस माइनस 4/5, और क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है तो वी विल टेक माइनस साइन एंड प्लस को हम इग्नोर कर देंगे। सिंपल। सिमिलरली द सेम क्वेश्चंस आर देयर इज नो चेंज इन दिस क्वेश्चंस अगेन, बस केवल क्वाड्रेंट इन्होंने चेंज किया है। कॉट एक्स को अगर तुम देखोगे तो ये इन्होंने बोला है सेकेंड क्वाड्रेंट में, और कॉट एक्स दिया हुआ, तो ASTC। तो अगर सेकंड क्वाड्रेंट में देखें तो सिर्फ साइन की वैल्यू और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव रखूंगी, बाकी सारी वैल्यूज नेगेटिव रहेंगी, राइट? तो मैं अगर रेसिप्रोकल कर दूं तो tan x तो ऐसे ही आ गया, tan को नेगेटिव ही रखना है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है हमारा, तो tan की वैल्यू आ जाएगी -12/5, एंड सेक यहाँ से आ जाएगा क्योंकि सेक स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो 1 प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो -12/5 का स्क्वायर हो जाएगा 144/25। एलसीएम ले लोगे 25, और 25 प्लस 144 हो जाएगा 169। तो सेक एक्स की वैल्यू मेरी आ जाएगी प्लस माइनस, स्क्वायर रूट ले लो इसका, इट विल बी 13/5 प्लस माइनस। तो हमें प्लस लेना है या माइनस? ऑब्वियस सी बात है, सेकंड क्वाड्रेंट में वी विल टेक माइनस। तो सेकंड क्वाड्रेंट में सेक इज गोइंग टू बी नेगेटिव, तो -13/5 इज द करेक्ट आंसर। और -13/5 अगर सेक का रेसिप्रोकल कर दोगे यू विल गेट द cos x, cos x इज -5/13। तो सारे रेशियोज इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ओनली इन द सेकंड क्वाड्रेंट साइन एंड कोसेक विल बी पॉजिटिव। तो अगर तो आपका cos आ गया है, यहाँ से cos आ गया है, तो sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स है, यू कैन फाइंड द साइन एक्स, और साइन एक्स की जो वैल्यू है उसको पॉजिटिव लेना, राइट? और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक लोगे वो भी पॉजिटिव लेना, सेकेंड क्वाड्रेंट से फर्क पड़ता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 31/3, 31 पाई/3, यहाँ पे आई थिंक ये है 31 पाई/3, राइट? तो अगर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो व्हाट आई कैन राइट इट लाइक दिस, आई कैन राइट लाइक 10 पाई प्लस पाई/3। एलसीएम लेके चेक कर लो, दिस इज 31 पाई/3, राइट? तो 10 पाई मुझे पता है, दिस इज 2 पाई, दिस इज 4 पाई, दिस इज 6 and 8 and 10। तो 10 पाई प्लस थीटा इज अगेन यू विल बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो दिस इज 2 पाई का मल्टीपल जो भी होता है आप सीधे सीधे लिख सकते हो, बिकॉज इट इज अ मल्टीपल ऑफ 2 × 5 पाई। तो 2 पाई का मल्टीपल है, राइट? तो दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, तो ऑल पॉजिटिव का मतलब दिस इज साइन पाई/3, पाई/3 मीन 60 डिग्री, तो साइन 60 की वैल्यू यू नो, साइन 60 इज √3/2, सो द आंसर इज √3/2। सिंपल क्वेश्चन आर वेरी इजी अगर आप उसको ब्रेक कर ले जाओ। नेक्स्ट कॉस में माइनस इज पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा 1710।
तो हमारी कोशिश क्या रहती है ना कि हम इसको 360 के मल्टीपल में, क्योंकि देखो डिग्री में दिया है तो हम डिग्री में ही ब्रेक करेंगे, अगर मान लो पाई के टर्म में दिया है तो 2 पाई के मल्टीपल में ब्रेक करते हैं, क्योंकि 2 पाई इज 360 डिग्री, 2 पाई रेडियन इज 360 डिग्री। तो अगर ये मैं इसको 360 का मल्टीपल देखूँ तो 360 इंटू 1800 जो होता है वो 360 का मल्टीपल होता है। यस यस, तो 18 बन जाए 18 टू 36 5 टाइम्स होता है। यस, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 1800 माइनस 90। तो 1800 माइनस 90 में इसको पहले तो माइनस का, क्योंकि ये इवन फंक्शन है तो मैंने इसका माइनस हटा के इसको प्लस लिख दिया, क्योंकि कॉस इज अ इवन फंक्शन, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, राइट। और ये 1710 बन गया, और 1710 को मैंने 360 के मल्टीपल में लिख लिया, क्योंकि 360 इंटू 5 इज 1800, और ये 360 माइनस थीटा बना, तो 360 माइनस थीटा मतलब आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ASTC यानी कि कॉस इज पॉजिटिव, तो कॉस पॉजिटिव होगा, आई कैन राइट इट लाइक कॉस 90 इज 0, आंसर इज 0, राइट। सो विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज 3.2। सेम क्वेश्चन आ देयर, अगर आपको एग्जांपल समझ आ गया है तो सेम तरीके से क्वेश्चन चलेगा, है ना। तो cos x की वैल्यू गिवन है -1/2, और वो भी गिवन है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ASTC, राइट, थर्ड क्वाड्रेंट, यानी कि tan एंड cot, कौन पॉजिटिव रहेगा, tan x इज पॉजिटिव, cot x इज पॉजिटिव, और बाकी सारे जो रहेंगे वो सब नेगेटिव रहेंगे। टोटल 6 रेशियोज होते हैं, 6 फंक्शंस होते हैं, अगर फंक्शंस के में बोले तो 6 होते हैं, जिसमें से ये दीज 2 विल बी पॉजिटिव इन द थर्ड क्वाड्रेंट एंड रेस्ट ऑफ देम विल बी नेगेटिव डेफिनेटली। तो अगर cos x आपको दिया ही है तो sec x सीधे निकाल दो, इसका रेसिप्रोकल -2 हो गया, और sec पता चल गया, तो sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो tan स्क्वायर x कितना आ जाएगा, tan स्क्वायर x आ जाएगा sec स्क्वायर x -1, तो इसका स्क्वायर -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, -1 इज 3, तो tan x की वैल्यू आ रही है +-√3। तो इन द थर्ड क्वाड्रेंट आई विल टेक द प्लस वैल्यू, तो tan x इज √3, और tan x का रेसिप्रोकल cot x इज 1/√3, तो tan x cot x आ गया। अब आपको कोसेक चाहिए, तो कोसेक आपको पता ही चल चुका है, और अगर आपको चाहिए कौन सा cos की वैल्यू चाहिए, तो cos x को क्या लिख सकते हो, cos x को लिख सकते हो cot x इंटू साइन x, क्योंकि cot होता है cos अपॉन साइन, और साइन साइन कट जाएगा, तो cot x को आप cos x को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना मैंने क्या कहा, cos x को आप लिख सकते हो cot x इंटू साइन x, बिकॉज cot क्या होता है cos अपॉन साइन, साइन साइन कर दिया। तो अगर आपको cot x की वैल्यू पता है, cot x इज 1/√3, एंड साइन x की भी मैंने कहीं निकाली थी, साइन x की नहीं निकाली तो निकाल सकते हो, क्योंकि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x 1। मैंने पहले भी कहा था कि मैं सारी चीज़ें नहीं निकालूंगी, आई एम जस्ट डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट्स एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई एम सॉल्विंग, बट बाकी चीज़ें आप पेन पेपर लेके बैठो, आपको सारे आंसर्स आपके निकल गए, राइट। तो cot x हमारे पास निकल आएगा, अगर हमें पता है कि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x 1 होता है, राइट। तो अगर आपको cos x पता है तो साइन x की क्या वैल्यू होगी, अगर आपको cos x पता है -1/2, तो यू कैन कैलकुलेट द साइन x, बिकॉज साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, और इसका स्क्वायर होता है 1/4, तो 1 माइनस 1/4 इज नथिंग बट 3/4, और 3/4 का आप स्क्वायर रूट लोगे तो इट विल बी √3/2, दिस विल बी, तो साइन x की वैल्यू आ रही है ±√3/2, और इन द थर्ड क्वाड्रेंट आई विल कंसीडर, थर्ड क्वाड्रेंट में हम साइन को निगेटिव लेंगे, तो साइन x की वैल्यू हम लेंगे -√3/2, तो इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो मेरे पास आ जाएगी कोसेक x की वैल्यू, यानी कि माइनस का 2/√3, ये कोसेक x आ गया, और cot x को साइन x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा, अच्छा cos x तो दिया ही था, ओके। एंड नेक्स्ट साइन x आपको पता है, वो भी क्वाड्रेंट चेक कर लेते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, तो साइन पॉजिटिव होता है और कोसेक भी पॉजिटिव होता है, कोसेक x इसका रेसिप्रोकल कर दो फटाफट, तो कोसेक स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर x, 1 प्लस cot स्क्वायर x, तो यहाँ से मुझे cot स्क्वायर x मिल जाएगा, कोसेक स्क्वायर x -1, कोसेक स्क्वायर x हो जाएगा 5/3 का स्क्वायर, यानी कि 25/9 -1, तो हो जाएगा 25 - 9 इज 16/9, तो cot x की वैल्यू आ रही है मेरे पास ±4/3, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट ले लेती हूँ। तो अब हमें प्लस लेना है या माइनस, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में
कॉट निगेटिव ही होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, दीज टू विल बी पॉजिटिव एंड बाकी सारे निगेटिव होने वाले हैं। तो यहाँ पे हम माइनस की वैल्यू को लेंगे और पॉजिटिव की वैल्यू इग्नोर कर लेंगे। तो कॉट एक्स हो जाएगा मेरे पास -4/3। तो आपको कॉट एक्स पता है, साइन एक्स पता है, तो कॉस एक्स आ गया, क्योंकि कॉस एक्स को क्या लिख सकते हो, बोलो? कॉस एक्स को लिख सकते हो कॉट एक्स इंटू साइन एक्स। तो cos x को देखो हम अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो cos x को अगर हमें ये सब पता है तो सीधे मल्टीप्लाई करके cos x को हम निकाल सकते हैं cot x इंटू साइन एक्स से भी। तो cot x आपने निकाला है माइनस का 4/3 और साइन x इज 3/5, तो 3 कट गया, तो इट इज -4/5। तो साइन का जरूर ध्यान रखना, क्वाड्रेंट के हिसाब से cos इज गोइंग टू बी निगेटिव, और cos का रेसिप्रोकल कर दोगे तो sec आ जाएगा -5/4। The same question is there. I don't think it is there is any need to for explanation. Cot x आपको पता है, तो cosec square x is equal to 1 plus cot square x। तो cosec आ जाएगा, cosec का रेसिप्रोकल sin आ जाएगा, cot का रेसिप्रोकल tan आ जाएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से देख लेना, A S T C एंड थर्ड क्वाड्रेंट में केवल tan एंड cot ही पॉजिटिव रहेंगे, tan cot के अलावा बाकी सब नेगेटिव। sec फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ए एस टी सी, फोर्थ क्वाड्रेंट में ओनली कॉस एंड सेक, कॉस एंड सेक पॉजिटिव है और कॉस एक्स भी पॉजिटिव होगा 5/13 इसका रेसिप्रोकल, एंड बाकी सारे क्या होंगे, निगेटिव होंगे। और अगर आपको पता है सेक, तो सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स से टैन निकाल लो और टैन का रेसिप्रोकल कॉट कर दो, राइट, और कॉट आ जाएगा, फिर साइन आ जाएगा, सब आ जाएगा। सेम क्वेश्चन इज दिस, एंड सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन एंड कोसेक विल बी पॉजिटिव, साइन एंड कोसेक विल बी पॉजिटिव एंड रेस्ट ऑफ देम विल बी नेगेटिव। ऑलराइट, नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखते हैं, साइन 765 डिग्री अगर इसकी वैल्यू मुझे चाहिए, तो साइन 765 को मैं कैसे ब्रेक करूँ, साइन 765 को कैसे ब्रेक करूँगी, 360 के मल्टीपल हम ब्रेक करें, 360 इंटू 2 इज 720। तो अगर हम 720 प्लस करें तो ये आ जाएगा साइन 720 प्लस 45, ठीक है। तो नोन एंगल कुछ निकल आना चाहिए क्यूट सा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 360 इंटू 2, तो 360 का मल्टीपल है और 360 प्लस थीटा बन गया, तो 360 प्लस थीटा मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर गोइंग टू बी पॉजिटिव, सो दिस इज साइन 45, सो साइन 45 इज 1/√2, 1/√2 इज द आंसर। एंड ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कोसेक है, कोसेक में ये माइनस ही रहता है, कोसेक माइनस थीटा, क्योंकि कोसेक साइन का रेसिप्रोकल है, इट इज अगेन ऑड, तो माइनस का कोसेक 1410 हो जाएगा। 1410 को कैसे ब्रेक करा जाए, 1410 को अगर हम देखें 360 के मल्टीपल में 360 इंटू 3, 360 इंटू 4 करके देखा जाए, 360 इंटू 4, तो 1560 और ये 1560 और 1410 में क्या डिफरेंस है, 1410, अगर हम 1410 देखें तो ये आ जाएगा मेरे पास 1410 150 का आ रहा है। तो अगर हम इसमें 1410 में से या फिर माइनस कर दें, क्या कर दें, 4 टाइम्स 360, 4 टाइम्स 360 होता है 1560, तो 1560 में से अगर मैं 30 डिग्री माइनस कर दूँ तो 1530 आएगा, या फिर अगर मैं 150 माइनस करूँ, क्या करूँ, 150 माइनस, चलो मैं 150 से निकाल दूँ, फिर 150 निकालना मेरे लिए आसान है ना, मुझे 150 का डिफरेंस दिख रहा था, तो कोसेक 1410 को मैं लिख सकती हूँ कोसेक 360 इंटू 4, 360 इंटू 4 1560 हो गया, और 1560 माइनस 150 ये लिख सकते हो। तो 360 माइनस थीटा यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट पड़ेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो कोसेक क्या होता है, ASTC कॉस पॉजिटिव होता है, कोसेक नहीं, कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो ये माइनस ही रहेगा, तो ये बन जाएगा कोसेक 150। तो कोसेक 150 का मतलब क्या हो गया, 150 डिग्री लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, तो 150 को मैं हमेशा क्या लिख सकती हूँ, 180 माइनस 30, 180 माइनस 30 अगर लिखोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट पड़ेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, तो ये साइन 30, आंसर इज 1/2, चेक कर लेना। तो आंसर इज
1/2 साइन का आंसर है, लेकिन अगर हमारे पास कोसेक का आंसर पूछ रहा है तो आंसर क्या आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल यानी कि 2 आ जाएगा। मैंने साइन निकाल दिया। अगर हमारे पास साइन 150 की वैल्यू आई है साइन 30, साइन 150 इज साइन 30 एंड दैट इज 1/2, तो कोसेक में ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, राइट। तो आंसर चेक कर लेना। और यहाँ पे मैंने देखो, जरूरी नहीं कि जैसे मैंने ब्रेक किया आप इसी तरीके से ब्रेक करो, आपको जैसे भी ब्रेक करोगे तो 360 प्लस में, 360 माइनस में, या फिर अगर हम इसको 1560 में किसी और चीज में ब्रेक कर लेते तो भी हम ब्रेक करके फाइंड कर सकते थे। तो किसी भी एंगल में ब्रेक करोगे अल्टीमेटली तुम्हें एक्यूट एंगल में लाना पड़ेगा और किसी नोन एंगल में लाना पड़ेगा जो तुम्हें पता हो। नेक्स्ट 19π/3, तो tan 19π/3, 19π/3 को अगर हम इसमें बनाएं मिक्स में तो क्या आएगा, tan 3 6 18 यानी कि 6π प्लस π/3, 6 3 18 प्लस 1 19, तो 6π is 2π 4π 6π यानी कि 6π प्लस यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है तो ये हो जाएगा tan π/3, π/3 मतलब 60 डिग्री यानी कि tan 60 मीन्स √3, सो आंसर इज √3। आंसर चेक कर लेना भाई। एंड नेक्स्ट साइन माइनस का दिया हुआ है, माइनस का है साइन का, तो फिर हम इसको आगे माइनस लगा देंगे, सो इट इज माइनस साइन 11π/3, तो माइनस साइन 11π/3 है, तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो 11π/3, तो 3 3 जा 9, 9 प्लस 1 10 यानी कि मैं इसको कैसे ब्रेक कर सकती हूँ, 4 3 जा 12, 4π माइनस π/3 हो जाएगा, 4 3 जा 12 माइनस 1 11, यस। तो यानी कि ये मेरे पास बन जाएगा माइनस साइन 4π माइनस π/3 और 4π माइनस थीटा, तो 4π माइनस थीटा इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, साइन इज नेगेटिव और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन π/3, और साइन π/3 मतलब साइन 60, साइन 60 मतलब आंसर इज √3/2, राइट। तो √3/2 इज द करेक्ट आंसर। एंड द नेक्स्ट वन इज कॉट, तो कॉट इज अगेन कॉट ऑफ माइनस थीटा इज माइनस कॉट थीटा, क्योंकि tan का रेसिप्रोकल होता है ना, tan ऑफ माइनस थीटा, tan साइन के हिसाब से चलता है, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन, तो ये हो जाएगा माइनस का माइनस कॉट 15π/4, तो 15π/4 को कैसे ब्रेक करोगे, 4 3 जा 12, तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 यानी कि अगर हम देखें तो कॉट 4π माइनस π/4 लिख सकते हैं, चेक कर लेते हैं, 4 4 जा 16 माइनस 1 15, यस, 4 4 जा, तो ये माइनस है ना, और 4π माइनस थीटा आ रहा है, तो देखो यहाँ पे सिर्फ कॉस एंड सेक ही होते हैं पॉजिटिव, तो कॉट तो निगेटिव ही होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कॉट π/4 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का कॉट π/4 बनेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, तो ये माइनस का कॉट π/4 बनेगा, और आगे ऑलरेडी एक माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कॉट π/4 45 डिग्री दैट इज 1, so the answer is 1 and this was the last question of the exercise, तो the whole exercise I discussed, तो आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, कोई नहीं आएगा तो जस्ट कमेंट में बोलना, एंड फॉर टू प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस यू कैन ज्वाइन माय क्लासेस, ओके, थैंक यू।